Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going for yearly past papers. Paper 2, May June 22, variant 21. P2, of course, it is our structured paper. 5 questions, 20 marks each, total 100 marks, 1 hour 45 minutes. So let me see which question is appearing in the first. So this is first question. Again, book of original entry, purchase journal, purchase return journal, account of purchase ledger, a customer Nakul, then some theory. Here we go. Nakul is a trader selling goods on, he sell goods on credit. Okay, sir. He buy mostly of his suppliers from one supplier, Nadia, who allows Nakul at a discount of trade discount of 20%. नकुल नादिया को ट्रेड डिस्काउंट देता है, याद रखिएगा। ट्रेड डिस्काउंट वाली ट्रांजैक्शंस मैं आपके सामने हाईलाइट कर लेता हूं। ट्रेड डिस्काउंट वाली ट्रांजैक्शन नादिया वाली ट्रांजैक्शंस होंगी। लेट मी पिक नादिया। Jan 2nd, bought goods on credit from Nadia, return goods to Nadia, bought goods on credit from Nadia. That's it. So I just highlighted the Nadia's transactions. Why, sir? Because I need to apply discounts on them. For example, 350 was a list price, 10%, 20% is a discount. So discount is 70. Calculators, please verify. Kindly verify 20% of 350. Here it is, the trade discount 20%. ऑलरेडी फर्स्ट लाइन में मेंशन था, तो मैं इसी ट्रांजैक्शन को पहले कवर अप कर रहा हूं। 350 में से 70 माइनस होंगे, इट विल बी 280। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन गुड्स रिटर्न, इसके ऊपर भी जब परचेज करते हुए डिस्काउंट था, तो रिटर्न करते वक्त भी डिस्काउंट होगा। 20% ऑफ 80 इज 16 और माइनस करके हमारे पास वैल्यू आएगी 64। इन द थर्ड केस हमारे पास प्राइस दी हुई है 400, वी हैव टू अप्लाई 20%, 80, the remaining amount would be 320. Everybody please verify, we just apply the 20% on Nadia's transactions. Which transactions? याद रखिएगा, ट्रेड डिस्काउंट पेमेंट के वक्त नहीं होता। ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ परचेज, सेल, परचेज So trade discount is applied on sale, purchase, sales return and purchase return transactions. राइट हो गया। और फिलहाल ये क्वेश्चन किस चीज का है? परचेज और परचेज रिटर्न का। एंड एग्जामिनर इज आस्किंग टू मेक परचेज जर्नल एंड परचेज रिटर्न जर्नल। So one by one, I'm going to write it. We are working for the month of January 2022. So here is the heading 2022.
January is the month. Second transaction paid hai. It was not purchase or purchase return. So 12th is the first transaction. 12th is the first transaction. Nakul purchased goods from Nadia, and we have to enter a transaction which is after trade discount. So a transaction after trade discount, the value is 280. There is no use of two columns in purchase journal. There is no use of two columns in purchase journal for values. There is only one column required for amount. Next, return goods. Let me move towards purchase return journal. Examiner already made the format. So we are putting the date 2022 January 1st. Goods returned by Nadia. Again, we need to pick the value which is after trade discount, which is 64. Just for a reminder, note it down. We are attempting May, June 2022, variant 21 right now. So we did two transactions. The third transaction is purchase goods from Nadia again. Purchase goods from Nadia again. This time the after trade discount value is 320. तो जो चीजें देखें मैं पहले कर रहा हूं आप भी स्मार्टली पहले कर लिया करो, इससे इंशाल्लाह आप कंफ्यूज नहीं होगे। जैसे ट्रेड डिस्काउंट से बताया हुआ है तो आप पहले से निकाल लो कहां कहां लगेगा, सब पे नहीं लगेगा, सिर्फ नादिया के साथ आपकी ये ट्रांजैक्शन है। ओके हो गया? नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स इररिलेवेंट है सर मेरे लिए, सोल्ड गुड्स में रिकॉर्ड नहीं कर रहा, मुझे बनाना ही परचेज जर्नल और परचेज रिटर्न जर्नल है। 29th, bought goods. Again, purchase journal transaction from Sufi, and amount is 60. No trade discount with them. No trade discount with her. Next transaction, 30th, Sufi 9 on 30th. 30th, 9. सूफी को हमने परचेज रिटर्न ट्रांजैक्शन में आएगा। Let me correct the date. Date of the first return transaction is 14th, right? So that's it. Purchase and purchases return journal हम लोगों ने बना लिया. Now we need to take the total. Calculators total कर लीजिएगा. Next. So this is how we have to attempt purchase journal and purchase return journal. Next requirement is Nadia's account. So सबसे पहले हम year की heading डालते हैं 2022. Month is January. Month is, सर ये हमारा कौन सा लेजर होगा? बेटा ये हमारा परचेज लेजर होगा, बिकॉज हमने इससे बाय किया है ऑन क्रेडिट। जिससे भी तुम बाय करोगे ऑन क्रेडिट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेजर्स। लिसन बेटा, क्लियर कर लें चीजों को, मैं रिवाइज करवाता हुआ जा रहा हूं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेजर्स: सेल्स लेजर, परचेज लेजर, जनरल लेजर।
कस्टमर के अकाउंट सेल्स लेजर, सप्लायर्स के अकाउंट परचेज लेजर, दुनिया जहां के सारे अकाउंट जनरल लेजर। तो ये भूलेंगे नहीं, थ्योरी में हमने इसे काफी डिस्कस किया है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी अकाउंट बनाने की है, किसकी? निदा की अकाउंट बना रहे हैं हम। सो पेड 441 फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी क्या थी? दोबारा आ जाएं, फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी क्या है? पेड 441 बाय चेक टू निदा नादिया, फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट ऑफ 450। इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस इसका 450 होगा। इस जनवरी की फर्स्ट जनवरी में, फर्स्ट जनवरी का इसका बैलेंस 450 होगा और पेमेंट कितनी की है? बाकी डिस्काउंट होगा, 441 के अलावा बाकी डिस्काउंट होगा। तो आइए सबसे पहले सर बैलेंस ब्रॉड डाउन आइडेंटिफाई जो हमने किया है, बैलेंस ब्रॉड डाउन, हमने खुद ये सेंटेंस पढ़कर आइडिया निकाला है कि पेमेंट तो 441 हो रही है, लेकिन इसका अमाउंट पहले क्या था? फर्स्ट जनवरी में 450 था। इट इज ऑलरेडी मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। इसका ओपनिंग बैलेंस, लायबिलिटी बैलेंस कितना था? जब पेमेंट होगी तो पेमेंट वुड अपेयर ऑन द डेबिट साइड एंड द डेट इज सेकंड। याद रख लें, ये बैलेंस फर्स्ट जनवरी को था, एक दिन के बाद पेमेंट हुई है, सेकंड जनवरी को पेमेंट हुई है, और पेमेंट कितनी हुई है? 441। पेमेंट पेमेंट हुई है 441। सो बैंक सेकंड को हम लिखेंगे बैंक 441 और रिमेनिंग अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज डिस्काउंट रिसीव। सर ये भी बता दो, इधर आओ बताऊं तुम्हें मैं, इधर आओ, 10 दफा बता दो लेकिन फिर दोबारा बता दो सर। डिस्काउंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एंड cash discount, and there are further classification of cash discounts. Discount allowed, discount receive। discount allowed कस्टमर को करते हैं, डिस्काउंट रिसीव सप्लायर से लेते हैं। ये सप्लायर है, परचेज लेजर है, ट्रेड पेएबल है, इसके साथ मेरी रिलेशनशिप डिस्काउंट रिसीव वाली होती है, कस्टमर के साथ डिस्काउंट अलाउड वाली होती है। सर वो भी बता दो, लो वो भी देख लो, डबल एंट्री का शौक हो रहा है तुम्हें बहुत ज्यादा। डिस्काउंट अलाउड डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट, बोले डिस्काउंट अलाउड डेबिट, तो सर जी इसकी एंट्री क्या होगी? ट्रेड रिसीवेबल, डिस्काउंट रिसीव के साथ भी देखें डबल एंट्री क्या होती है। डिस्काउंट रिसीव सर हमारा रेवेन्यू होता है, डिस्काउंट रिसीव हमारा डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट, ट्रेड पेएबल डेबिट, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट, ट्रेड पेएबल डेबिट, और डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस से हमेशा डेबिट होता है। तो छोटी छोटी बातें हमेशा याद रखें, एक्सपेंस है या रेवेन्यू है, एसेट है, लायबिलिटी है, क्या है? ट्रेड रिसीवेबल एसेट है, ट्रेड पेएबल लायबिलिटी है। डिस्काउंट से लायबिलिटी हो या एसेट हो कम ही होता है। एसेट होगा तो कम होगा रिसीवेबल क्रेडिट, लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट होगी ट्रेड पेएबल। तो ये थोड़ा सा रिवीजन था, वापस आ जाएं तो डिस्काउंट रिसीव, ये अगर आप पीएलसी एसएलसीए के लिहाज से याद रखना चाहो तो एसएलसीए पीएलसी के फॉर्मेट भी पढ़ाया हुआ है हमने। अगर मैं आपके लिए पीएलसीए का फॉर्मेट बनाऊं तो कैसा बनेगा? ब्रॉड डाउन, क्रेडिट परचेज, परचेज रिटर्न, बैंक से पेमेंट या कैश से पेमेंट,
डिस्काउंट रिसीव, सेट ऑफ, रिमेंबर इंटरेस्ट, रिफंड, ये मेन ट्रांजैक्शन है हमारी पीएलसीए की, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट है, तो परचेज लेजर का फॉर्मेट भी यही होता है मेरे दोस्त। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आ जाइए, फर्स्ट ट्रांजैक्शन कर ली, सेकंड नादिया ढूंढनी है, नादिया, नादिया कहाँ हो सर? 12th में नादिया आ गई है, 12th में नादिया आई थी और वैल्यू थी हमारे पास 280, इट वाज अ परचेज। नादिया आई थी, ये रही नादिया, 12 को और 18 को, 12 को और 18 को, ये भी परचेज ट्रांजैक्शन है, ये भी हमारे पास परचेज ट्रांजैक्शन है। वैल्यू 320, then we have a purchase return from Nadia 64, 64 purchase return with the date of 14th। दैट्स ऑल। बड़ी साइड को प्लस करो, छोटी साइड को माइनस करो, नादिया का अकाउंट बंद करो। बड़ी साइड टोटल कीजिए इसका, तो एंडिंग बैलेंस बड़ी साइड का टोटल करेंगे सबसे पहले हम सब। बड़ी साइड का टोटल 1050, दोनों तरफ आ जाएगा, बड़ी साइड में से छोटी साइड माइनस कर दीजिएगा, 4 कैरिड डाउन बैलेंस 536, चेक कर लीजिएगा, बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपने लाजमी बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है, देख लें एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट, वो बार बार मांगता है। कोई भी टी अकाउंट आप बनाएंगे जिंदगी में, उसको नेक्स्ट मंथ के लिए बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉट डाउन जरूर करेंगे। 6 नंबर का अकाउंट था। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, कंप्लीट द टेबल बिलो बाय टिकिंग ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी। अब ये लेवल आ गया है हमारा। Now, Nakul has a bank overdraft and would like to reduce it. Okay, उसका बैंक ओवरड्राफ्ट है और वो रिड्यूस करना चाहता है। अच्छी बात है बेटा, रिड्यूस करना चाहते हो तो। He is considering paying his suppliers later than he currently does. सारा नजला वो किस पे गिराना चाह रहा है? सप्लायर पे, कि मैं उसको लेट पे किया करूं जिससे मेरा ओवरड्राफ्ट कम हो जाए। क्या ये मुझे हेल्प करेगा? Advise Nakul whether or not he should take longer time to pay suppliers. Justify your answer by providing two advantages and two disadvantages. So generally advantage ये होगा कि Nakul will get more time to pay. Nakul will get more time to pay, can settle अर्ली ड्यूज फर्स्ट। तो जो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे वो ड्यूज मैं पहले पे कर दूंगा, बजाय कि मैं इसको पे करूं, मैं कोई और दूसरी एक्सपेंसेस की लायबिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी की लायबिलिटी, वो मैं पे कर देता हूं ना। ज्यादा बेहतर ये है।
Now the disadvantage would be suppliers may not sell him, or reputation will affect. So make your own sentences. I'm just guiding you. If supplier could positively accept his offer to pay long time, then he may go for it. अपना कंक्लूजन दे दें. Which helps to control or reduce बैंक ओवरड्राफ्ट. शॉर्ट फॉर्म अपने एग्जाम में नहीं लिखनी, याद रखिएगा. शॉर्ट फॉर्म आप एग्जाम में नहीं लिखोगे. So we are moving towards the next question. So the question number 2, Fatma is a sole trader. She prepares her financial statement at the end of March every year. And so this is 31st March 2022. This is 31st March 2022. Trial balance is given to us. Okay. Adjustments are with us. What they ask for? They ask for income statement for 11 marks and capital account of Fatima. And there is little theory on it. So they asked to make income statement. Let me pick up the income statement. Let me pick the income statement format. So this is a sole trader, of course. So sole trader. So I took the sole trader format, income statement. SFE is not required. Okay, so adjustment. You always work according to the adjustment. Adjustment number 1, closing inventory. Clothing inventory 3120. It's an adjustment 3120. Clothing inventory is subtracted from cost of sale. Clothing inventory is subtracted from cost of sales. Second adjustment, Fatma took goods for her own use. These goods cost 1300. So this is drawings basically. Cash drawings में goods वाली drawings add हो जाएंगी. 9880. Check it please. And it should be subtracted from purchases. Where is the purchase? So we need to subtract 1300 from the purchase. Check out your calculators. So I'm getting the purchases right now 35,200. मैं आप लोगों को recommend करता हूँ CIs में आप ऐसे ही solve करेंगे. ऐसा ना करिएगा कि सारी adjustment करने पहले बैठ गए. सवाल attempt करना, values format में डालना बाद में करा. ऐसा ना हो कि आपके पास टाइम हो ना और आपके सारे मार्क्स चले जाएं. सिर्फ वर्किंग कर ली और फॉर्मेट ना बनाया, 0 नंबर. तो साइड बाय साइड चले, खुदा ना खासा आप
एग्जाम में फंस गए, हैप्रेजेट हो गए, टाइम किसी और क्वेश्चन में ज्यादा लॉस्ट हो गया, तो एटलीस्ट यू विल गेट सम मार्क्स ऑन इट। जो जो वैल्यूज में डाल चुका हूं कम से कम उतने तो मुझे मार्क्स मिल ही जाएंगे। तो इसलिए साथ साथ चलाया करें, और एडजस्टमेंट के ही ज्यादा मार्क्स होते हैं। सो ड्राइंग्स ऑफ कोर्स मैं एसएफई बना नहीं रहा, इसलिए मैं ड्राइंग वाला इफेक्ट नहीं ले रहा। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन इज टू बी अप्लाइड ऑन फिक्सचर्स एंड इक्विपमेंट 20% आरबीएम। आ जाए मेरे साथ, फिक्सचर एंड इक्विपमेंट माइनस कीजिएगा। क्या आंसर आया इन दोनों को माइनस करके? 40960, and we need to apply 20% on it. Calculators, 8192 is the depreciation. 8192 is the depreciation of fixtures and equipment. Kindly verify कर लीजिएगा. This was a RBM method. During RBM, we need to apply percentage on net book value. Cost में से पुरानी depreciation minus करते हैं, फिर depreciation apply करते हैं. 8192 is an expense. मुझे एसएफपी वाली वैल्यूज नहीं चाहिए, एसएफपी रिक्वायर्ड नहीं है। अक्रूड वेजेस 800, ऑफ कोर्स मुझे पता है करंट लायबिलिटी में जाता है, लेकिन मेरे काम का फिलहाल ये नहीं है। मुझे अक्रूड वेजेस को वेजेस में ऐड करना है, मुझे वेजेस से इंटरेस्ट है 800। मेरा इंटरेस्ट इस वक्त एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज हैं 10,900। हियर आई टुक 10,900 वेजेस। यही मैं आपको बार बार सिखा रहा हूं, फॉर्मेट साथ साथ डालना शुरू कर दिया करें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है अब आपके लिए ये। रेंट इंक्लूड 1500, ये समझ लें, तंग हो जाते हैं आप इसमें। 3 months till May, 3 months till May, कैलकुलेट कीजिएगा इसके अंदर क्या होना चाहिए। The rent payment should have been 1500 was paid for how many months? 3 months. And how many months are extra? We are working till March. So after March, April, May, 2 months are prepaid 1000. 1500 divided by 3 multiply by 2. क्योंकि हम लोग मार्च तक के लिए अकाउंट्स बना रहे हैं, वी आर वर्किंग टिल March. Look at the requirement as well. Our income statement we have to make it till March. और इन्होंने पे कर दिया कब तक? मई तक। तो मार्च तक तो सही है। मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल, मई। So 2 months they paid in advance. So amount is 1000 from the value of rent. ऊपर देखिएगा रेंट कितना दिया हुआ है 9000, इसमें से 1000 प्रीपेड माइनस हो जाएगा, अक्रूड से एक्सपेंस बढ़ता है, प्रीपेड से एक्सपेंस कम होता है। So here is rent and rates in the expenses list, and the value should have been 8000. Next, irrecoverable debts 200 straight away. Irrecoverable debts, do we have irrecoverable debts in the trial balance? Answer is no, sir.
सो इररिकवरेबल डेट्स डायरेक्टली हम यहाँ नोट कर देंगे, इररिकवरेबल डेट्स with the value of as it is 200. Of course, it is to be subtracted from receivable as well. Every adjustment effect twice. SFP फिलहाल हमें बनानी नहीं है, but we need to apply provision for doubtful debts. मार दें सर, 6200 पे लगेगा provision for doubtful debt 186। इसमें से पुराने वाले को माइनस कर देंगे, चेक करेंगे बढ़ गया या कम हो गया। बढ़ता है तो एक्सपेंस, कम होता है तो इनकम प्रोविजन, बढ़ता है तो एक्सपेंस। तो ये $330 विल गो टू एक्सपेंसेस। रेफरेंस होगा इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर doubtful debts. That's all for the adjustments. Here we go for putting the values one by one. Number one, revenue 79400, 79400. Sales return 3970. वन बाय वन सारी वैल्यूज एक एक करके डालना शुरू हो जाएंगे। परचेज हम डाल चुके हैं, रेंट हम डाल चुके हैं, वेजेस हम डाल चुके हैं, जनरल एक्सपेंसेस 1287, general expenses, no short forms allowed in exam, 1800, insurance 1800, discount received, other income, discount received 1095, discount received is 1095. Opening inventory 3000. Opening inventory sir, fixtures and fitting, trade receivable, trade payable, they are the items of statement of financial position. So that's all for income statement items. Kindly start your calculations, calculators. सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर दीजिएगा 75430. Now I need cost of sale directly, which I put here, cost of sales, by solving these three values 35080। ऊपर से इसको माइनस कर देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 40350। अदर इनकम प्लस करके दिखाने की जरूरत नहीं है, एक्सपेंसेस का टोटल बाहर निकाल के बता दीजिएगा। एक्सपेंस का टोटल, एक्सपेंस का टोटल थ्री 0409। अब पूरे को एक साथ सॉल्व कर लें। ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम प्लस होगी और सारे एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे। 11,036 ये हमारा प्रॉफिट आ रहा है। जो बच्चे देखना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से देख लें हमारी इनकम स्टेटमेंट। पूरा हमारे एक पेज पर इनकम स्टेटमेंट आ चुका है। एग्जामिनर इज आस्किंग फॉर द कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारे पास है कैपिटल अकाउंट। लेट मी टेक आउट द कैपिटल ब्रॉट डाउन 59,000। कैपिटल अकाउंट एग्जामिनर मांग रहा है बैलेंस ब्रॉट डाउन 49,000। सर आ जाए, डेट भी डाल लें। 2021 से स्टार्ट हुआ था जब इसका 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस था। देन वी अर्न द प्रॉफिट। प्रॉफिट से हमारा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा
जरा गौर से देखिएगा, डेट डालने का तरीका भी देख लें, 2022 31 मार्च। सिमिलरली ड्राइंग्स भी ईयर एंड में ट्रांसफर होती हैं कैपिटल अकाउंट में। ईयर एंड की डेट है 31 मार्च 2022। ड्राइंग्स, दो ड्राइंग्स थी, एक कैश ड्राइंग्स थी और एक गुड्स की ड्राइंग्स थी, दोनों यहीं पे ट्रांसफर होंगी। सो मेरा प्रॉफिट निकाला था मैंने 11036 और हमारे पास ड्राइंग्स हैं 9880 हमने तमाम ट्रांजेक्शन्स भी पढ़ ली थी। देयर इज नो फर्दर ट्रांजेक्शन फॉर कैपिटल, दैट्स ऑल, अकाउंट्स क्लोज, बैलेंस इज ट्रांसफर। तो पहले बड़ी साइड का टोटल कीजिएगा 60036 माइनस कर दीजिएगा 50156। कभी भी बैलेंस को शॉर्ट फॉर्म में मत लिखिएगा, बैलेंस पूरा लिखना है। बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन 50156 और डेट डालना मत भूलिएगा 2022 1 अप्रैल। दोबारा मैं आपको हाईलाइट कर दूं, एग्जामिनर कह रहा है कैपिटल अकाउंट तो बनाए ईयर एंड का, लेकिन बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 अप्रैल का जरूर दिखाइएगा, अगले साल का जरूर दिखाइएगा। Fatma would like to spend her business and she additionally thinks the additional finance 20,000 would be required for equipments she needs. The bank have offered 20,000 to be repaid after 4 years with the interest of 6%. Advise Fatma whether or not to agree to the bank loan. Justify your answer. अच्छा, जस्टिफिकेशन के लिए पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, पहले इसका देख लें इस वक्त बैंक बैलेंस क्या है। क्या डू वी हैव इनफ बैंक बैलेंस कहाँ है हमारे पास? बैंक बैलेंस नजर ही नहीं आ रहा सर। द फातिमा इज अ सोल ट्रेडर, रेवेन्यू, सेल्स रिटर्न, फिक्सचर्स, रिसीवेबल, बैंक बैलेंस उसे बदतमीज ने दिया ही नहीं है हमें, क्योंकि ये कंप्लीट इनकम स्टेटमेंट एसएफई नहीं बनवा रहा ना। एनी हाउ, वापस आ जाएं। अब मैं क्या एडवाइस करना चाहता हूं जरा देख लेते हैं। नंबर 1, बैंक लोन is the way of generating long-term finance Fatma requires $20,000. She has to pay fixed interest of, look here how to do it, इस तरह दिखाएंगे आप लोग, 6% of $20,000, $1,200। समझ आ गया? ये मार्क्स स्कीम का तरीका है सॉल्व करने का, ये मार्क्स स्कीम का तरीका है सॉल्व करने का। She has to pay fixed interest of 1,200 which is 6% of 20,000. It has to be paid, it has to be paid irrespective of profit or loss. Do not forget this term, irrespective of profit or loss. आपको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, आपकी इन्वेस्टमेंट जो करने जा रही हो वो आपके लिए बेनिफिशियल हो या ना हो, you have to pay interest by all means every year. Loan amount has to pay back
after 4 years. So she should save enough amount every year to return the loan. Got the idea? Equipment, of course, help to generate more revenues for the business. Equipment would help to generate more revenues for the business. वो पागल है, लोन ले रही है? नहीं सर, वो लोन लेकर इक्विपमेंट खरीद रही है. इक्विपमेंट खरीदने से क्या होता है? मशीनें खरीदने से क्या होता है? नॉन करंट एसेट बाय करने से क्या होता है? वी यूज देम इन द बिजनेस इन अ मोर प्रॉफिटेबल वे, सो दैट हमारे बिजनेस में प्रॉफिट्स और आए. जनरेटर्स खरीदने से या एसी खरीदने से या बिल्डिंग खरीदने से क्या होता है सर? हमारे पास रेवेन्यू और बढ़ते हैं. हमारे नॉन करंट एसेट बढ़ेंगे तो बिजनेस के अंदर रेवेन्यू जनरेशन एक्टिविटी बढ़ेगी. So here we have a question number 3. Julius is a hairdresser. He bought some new energy saving hair drying equipment 1900 on credit from YZH Limited. सर मैं क्या एंट्री बनाऊंगा? अब ये लेवल आ गया हमारा. डबल एंट्री पूछ रहा है एग्जामिनर हमसे. ये हमारा लेवल आ चुका है इक्विपमेंट डेबिट YZH लिमिटेड क्रेडिट. डेट डालना मत भूलिएगा 2022. एक नंबर डेट डालने का है इसमें और एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट नोट करने का. तो 3 नंबर एग्जामिनर ने दिए हैं. डेट्स आर इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, द न्यू हेयर ड्रायर विल यूज लेस इलेक्ट्रिसिटी देन इट्स ओल्ड. आपको पता है आजकल सोलर का जमाना है, डीसी पंखे आए हुए हैं और ये हमारे पास एक एसीज भी हमारे पास इसी तरह के आए हुए हैं, इन्वर्टर्स जो इलेक्ट्रिसिटी सेव करते हैं, कम कंज्यूम करते हैं. इसलिए ये दायरे थोड़े से एक्सपेंसिव भी होते हैं. रेगुलर एसी या रेगुलर फैन से डीसी फैन ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी सेव करते हैं. तो ये हेयर ड्रायर भी है जो कि इलेक्ट्रिसिटी सेव करता है. So there will be an additional insurance charges for the new hair dryers. The old hair dryers had been fully depreciated so that there is no net book value. यानी net book value equals to 0. क्या मतलब सर? इसका मतलब है total cost is equals to total accumulated depreciation. जितना एसेट था मैंने इससे हर साल मिनिमम था ना, मैंने उसको यूज कर लिया मैंने उसे पूरा का पूरा. मैंने 1 रुपया नहीं छोड़ा उसको मैंने यूज कर लिया. बात सही है. इन लोगों से पूछने क्या बोला सर ने? यूज का वर्ड सर ने यूज किया है. तो वापस आगे चलते हैं. कंप्लीट द टेबल बाय टिकिंग देम. एक्सपेंसेस इंक्रीज और डिक्रीज द प्रॉफिट. हीटिंग एंड लाइटिंग डिक्रीजेस द डेप्रिसिएशन बढ़ेगी. क्या हो रहा है? होल्ड ऑन. अच्छा, अब हेयर ड्रायर को आने से तो टिक टू शो वेदर दीज चेंजेस इन एक्सपेंसेस इंक्रीज. एक्सपेंसेस हमारे कम होंगे. कौन से वाले? दोबारा सुन लेना. एक्सपेंसेस हमारे पास कुछ एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, कुछ एक्सपेंस बढ़ रहे हैं. डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगा, हीटिंग एंड लाइटिंग कम हो जाएगा, इंश्योरेंस बढ़ जाएगी. पूछ सकते हो क्यों? एसेट नया आया है तो उसकी डेप्रिसिएशन होगी. पुराना वाला एसेट तो पहले तुमने पूरा का पूरा यूज कर लिया था, उसकी डेप्रिसिएशन हो ही नहीं रही थी शर्मी. पहले से वो पूरा यूज हुआ है तो डेप्रिसिएशन 0 था. अब तुमने एसेट खरीदा तो डेप्रिसिएशन होगी. तो डेप्रिसिएशन उसकी होगी. एक्सपेंस बढ़ेगा, प्रॉफिट कम होगा. प्रॉफिट डेप्रिसिएशन से तुम्हारा कम हो जाएगा.
इसी तरह उस जो नया एसेट आया उसको इंश्योर भी कराया है, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस बढ़ेगा और प्रॉफिट कम हो जाएगा। लेकिन हीटिंग एंड लाइटिंग का बिल अब कम आएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इस तरह चेन बनाने की कोशिश किया करो, चेन बनाने की, किस एक्सपेंस से प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ रहा है। नेक्स्ट सर, हमारे पास 3 इन्होंने क्या दे दिए, एरर। सर 5 हैं जी, गिन लिए मैंने 5। क्या मांगता है सर, जनरल एंट्रीज टू करेक्ट द एरर्स। आ जाइए वन बाय वन, हम सबका फेवरेट टॉपिक। टोटल जनरल एक्सपेंसेस 28, total journal expenses 28 in the petty cash book had not been posted to the journal ledger, यानी जर्नल लेजर में हमने जर्नल एक्सपेंसेस नहीं लिखे, अब लिख दें जनरल एक्सपेंस डेबिट, पॉइंट नंबर 1, वैल्यू इज 28, जर्नल एक्सपेंसेस डेबिट 28। बस यही गलती थी, हमने पेटी कैश से उठाकर जर्नल एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड नहीं किया था। अब हम जर्नल एक्सपेंस डेबिट करेंगे। एक्सपेंस हमेशा क्या होते हैं, डेबिट। जब भी रिकॉर्ड करोगे एक्सपेंस डेबिट ही होगा। मैंने जर्नल एक्सपेंस नहीं लिखा था, जनरल लेजर में टी अकाउंट उसका खोला ही नहीं। अब लिख दो, क्रेडिट कुछ भी नहीं है, तो जहां कुछ नहीं होता वहां होता है। नेक्स्ट नंबर 2 पे जाएंगे सब मेरे साथ। 28 अमाउंट है इसकी, 28। नेक्स्ट पे जाएंगे सब मेरे साथ। डायरेक्ट डेबिट, इट इज अ पेमेंट डायरेक्टली मेड फ्रॉम द बैंक। डायरेक्ट डेबिट इज अ पेमेंट डायरेक्टली मेड फ्रॉम द, a supplier had been recorded as 159 in the account of इसाक। सिर्फ इसाक गलत है, कौन गलत है, एंट्री बनती है इसाक डेबिट, बैंक क्रेडिट हमने ज्यादा लिखा या कम, कम। इसाक को और लिखो, डिफरेंस निकालो, इसाक डेबिट, इसाक को और डेबिट करो, कितना 36, इसाक डेबिट बस, इसाक डेबिट बस, क्रेडिट कुछ भी नहीं है। there is a mistake in only and only इसाक अकाउंट, इसलिए सिर्फ इसाक सही होगा, दूसरी जगह ऑटोमेटिकली सस्पेंस आएगा। अच्छे से पढ़ लिया करो, द मिस्टेक इज मेड इन इसाक अकाउंट ओनली। नंबर 3, A payment of credit transfer for wages, तनख्वाहें लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती हैं। दिन आ गए हैं, मजदूरों की खुशी के दिन आ गए हैं। एक मैसेज अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका है, अमाउंट डायरेक्टली क्रेडिट, वेजेस एंड सैलरीज के अकाउंट डायरेक्ट कस्टम एम्प्लॉइज के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है सैलरी। तो पेमेंट थी, हमने पेमेंट की थी वेजेस, has not been recorded in the accounting record। सर ये ओरिजिनल एंट्री है, ये एरर ऑफ ओमिशन है, डबल इफेक्ट होगा। क्या इफेक्ट होगा, डबल इफेक्ट होगा। देयर विल बी, मैं समझा रहा हूं मेरी जान, देयर विल बी नो सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि ये एंट्री दोनों में इफेक्ट हो रही है, डेबिट भी और क्रेडिट भी, ट्रांजैक्शन लिखी ही नहीं, तो इट अफेक्ट ट्वाइस। इससे पहले वाले दोनों एरर एक जगह हो रहे थे, इससे पहले वाले दोनों एरर से, तो मैं ये थिंकिंग प्रोसेस समझा रहा हूं। इस तरह डिसाइड किया करो, सस्पेंस आ रहा है या सस्पेंस नहीं आ रहा है। सो वेजेस डेबिट, बैंक क्रेडिट, बोले वेजेस डेबिट, बैंक क्रेडिट। तो ये वेजेस हम स्टाफ को दे रहे हैं और हमने खुद रिकॉर्ड नहीं की, 144, तो इसके डबल इफेक्ट आएंगे, सस्पेंस सोचने की जरूरत नहीं है। नंबर 4, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव हमेशा कहां होता है, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट। हमने गलती से क्या कर दिया, आप जी जी बिल्कुल, आप जो है ना वो डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट करना था, डेबिट कर दिया, डबल से क्रेडिट करेंगे। जब भी रिवर्सल होता है अमाउंट
जब भी रिवर्सल होता है अमाउंट डबल हो जाती है, डबल द अमाउंट। 38 का डबल क्या होगा? 38 मल्टीप्लाई बाय 276। तो करेक्शन हमारी होगी 76 से। गलती किसमें है? डिस्काउंट रिसीट में। बस गलती किसमें थी? डिस्काउंट रिसीट में। बस डेबिट कुछ भी नहीं है, जहां कुछ नहीं होता वहां सस्पेंस होता है। डायलॉग के साथ बोला करें, आगे पीछे नहीं हुआ करें यार। सस्पेंस। नंबर 5, लास्ट ट्रांजैक्शन ऑफ दिस एरर, द अमाउंट अकाउंट ऑफ रेंट and the account of commission receipt are both overcast by 200। सर रेंट हमें लगता है डेबिट होना चाहिए, कमीशन रिसीव क्रेडिट होना चाहिए। हमने क्या कर दिया? हमने तो ज्यादा लिख दिया। अब हम दोनों को कम करेंगे। दोनों को कम करने के लिए कमीशन रिसीव डेबिट, रेंट क्रेडिट, कंपनसेशन एरर। एरर का नाम लिख लो, क्या एरर है? कंपनसेशन एरर। सर ये क्या होता है? व्हेन टू और मोर एरर्स कैंसिल आउट देयर इफेक्ट्स। व्हेन टू और मोर एरर्स कैंसिल आउट देयर इफेक्ट्स, compensating errors। when two or more errors cancel out their effects। जो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते वो किसी की नहीं कर सकते। छोड़ दें, आप एक्सपेक्ट ही ना करें। when two or more errors cancel out their effect in a way, debit and credit effect are cancelled in a way। amount का जो effect है, ये तो दो थे ना खाली, एक तरफ से मैंने डेबिट वाला बढ़ा दिया, एक तरफ से क्रेडिट वाला भी बढ़ा दिया, इत्तेफाक से सेम अमाउंट से बढ़ा दिया, तो सेम अमाउंट से ही कम कर दूंगा। नो सस्पेंस, नो गैप। गैप ही नहीं आया तो सस्पेंस भी नहीं आएगा। डबल एंट्री कंप्लीट। कौन कौन से एरर थे? ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल, रिवर्सल, कंपनसेटिंग, ओरिजिनल एंट्री। ये 6 एरर्स ऐसे हैं जो होने के बाद सस्पेंस नहीं आता। सस्पेंस नहीं आता। ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल, ट्रांसपोजिशन, ओरिजिनल एंट्री, कंपनसेटिंग, रिवर्सल। ओके, इनसे सस्पेंस अकाउंट नहीं आता। यहां पे क्या हुआ था? इसने रेंट को भी ओवर किया है, यानी डेबिट भी ज्यादा कर दिया 200 से रेंट को, कमीशन को क्रेडिट कर दिया, बढ़ा दिया 200 से। ये एरर है। तो रेंट को ज्यादा बढ़ाया डेबिट पर, कमीशन रिसीव रेवेन्यू है क्रेडिट साइड है, ज्यादा बढ़ा दिया 200। तो दोनों को 200 200 कम करना पड़ेगा, अफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। दोनों अकाउंट ऐसे बढ़ाएंगे, एक से डेबिट बढ़ रहा है और एक से क्रेडिट, तो अफेक्ट तो ट्रायल बैलेंस स्टिल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आया ही नहीं। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट देखते हैं, या तो सस्पेंस मांगेगा या प्रॉफिट करेक्शन, या सस्पेंस या प्रॉफिट करेक्शन। और ये भी याद कर लीजिएगा, ओरिजिनल डिफरेंस आपने खुद निकालना है। इसका क्या मतलब होता है? सर बेटा इधर आओ, बताता हूं, इधर आओ, घबरा क्यों रहे हो? इधर तो आओ बेटा। इसका मतलब होता है फर्स्ट लाइन का बैलेंस हमें अननोन है। फर्स्ट लाइन का बैलेंस ब्रॉट डाउन जिसे कहते हैं, या बैलेंस ऑफ द ट्रायल बैलेंस अननोन है। फिर क्या करूं सर मैं? परेशान मत हो जाओ, पहली लाइन छोड़ो, पहली लाइन छोड़ो और बाकी सारी ट्रांजेक्शंस एक एक करके डाल दो। आई रिपीट अगेन, पहली लाइन मैंने ब्लैंक छोड़ दी, रेड लाइन से मैंने मार्क कर दिया, बाकी ट्रांजेक्शंस में 1 बाय 1 डालना शुरू कर दूंगा। अब आओ मेरे साथ, क्या मुझे बताओ पहली एंट्री में सस्पेंस आ रहा है? क्रेडिट 28, क्रेडिट 28। नंबर 1 डेट, एग्जामिनर का खराब है, डेट लिख दिया उसने। खैर लास्ट को इसमें यहां पर क्या लिखा हुआ था? एरर नंबर, तो उसे एरर नंबर लिखना चाहिए था। सर अगर डेट लिख दी तो मैं क्या करूं? बेटा ये डेट डाल दो सबकी, 30 अप्रैल 2022। सबकी डेट क्या डाल दो? 30 अप्रैल 2022। अगर उसने जबरदस्ती दे ही दिया है तो
हालांकि एरर का नंबर क्या, एरर के अंदर सीक्वेंस में 1 2 3 4 लिखा था, डेट थोड़ी थी। सो हाँ, रेफरेंस में आप लिखते हैं जर्नल एक्सपेंस। सेकेंड एंट्री में सस्पेंस आ रहा है क्या, क्रेडिट इसाक 36। मेरे साथ साथ करते रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। थर्ड एंट्री में नहीं आ रहा सर। फोर्थ में डेबिट 76, रेफरेंस डिस्काउंट रिसीव्ड। डेट एक दफा डाल दी काफी है, क्योंकि तमाम एरर्स की डेट एक ही है। लास्ट वाले में सस्पेंस नहीं आ रहा। दैट्स ऑल। बड़ी साइड को प्लस करो, छोटी साइड को माइनस करो, डिफरेंस निकाल लो, ये हो जाएगा हमारे पास बैलेंस, खाली बैलेंस। 12 का बैलेंस आ रहा है, चेक कर लीजिएगा। वेरी गुड। So this is third question completed or second? It was a third question, mashallah. Now we are moving to the fourth one. Iqwa is a trader who sells household furnishings. She, huh? Iqwa, she has provided the following information: inventory, receivable, ओडी वो लग रहा है ये तो, क्या कहते हैं उसको, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स या फिर रेशोज। देखते हैं ये हमारे पास क्या है। सर जी रेशो आ गया, जीपी मार्जिन पूछ रहा है, मेरे साथ साथ जीपी मार्जिन पूछ रहा है। जीपी मार्जिन ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। सर नेट सेल्स तो रेवेन्यूज हमारे पास गिवन है 1123000। जीपी का इशू है सर, मैं जीपी के लिए क्या करूंगा, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स करूंगा। सर कॉस्ट ऑफ सेल्स भी नहीं हुई तो मैं क्या करूंगा, कॉस्ट ऑफ सेल का इक्वेशन बनाऊंगा, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग की वैल्यू नीचे दी हुई है, होशियार खेल के सर आए, देख रहे हैं आप डेट, ये डेट देखें क्लोजिंग की है अप्रैल 30 2022 और मई 2021 हमारे पास ओपनिंग की है। कई दफा एग्जामिनर ये गलतियां करवा चुका है बच्चों से, आपसे नहीं होगी, क्योंकि मैं हूं ना आपको बताने के लिए। परचेज 72250, कैलकुलेटर कॉस्ट ऑफ सेल बता दीजिएगा, सब बच्चे बता दीजिएगा। 70 नाउ। अब जीपी निकालने के लिए हम रेवेन्यू में से इसको माइनस कर देंगे, 70 400 को 70, रेवेन्यू हमारे पास है 1123000, कितना आया 419, डाल दीजिए 41900 यहां पर इंटू 100 और अपना आंसर निकाल लीजिएगा। आंसर 2 डेसिमल प्लेस चाहिए, 2 डेसिमल प्लेस। प्लीज वेरीफाई 37.31%। याद रखिएगा जीपी मार्जिन किस में निकालते हैं हम, परसेंटेज में निकालते हैं। प्रॉफिट मार्जिन प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। सर नेट सेल कैसे आएगी, सर नेट सेल तो हमारे पास है, प्रॉफिट कैसे आएगा, प्रॉफिट इज जीपी माइनस एक्सपेंस, बोले जीपी माइनस एक्सपेंस। सो जीपी तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं सर, जीपी और नेट सेल्स भी हमें पता थी 1123000। जीपी अभी ऊपर निकाला था हमने 41900। एक्सपेंस ऊपर से देख लीजिएगा 1982019। प्रॉफिट बताइएगा, जीपी माइनस एक्सपेंस, जीपी माइनस एक्सपेंस। 22080, 22080, calculate the percentage please, 2 decimal place,
19.66667 661 सो 6 हो जाएगा हमारे पास 2 डेसिमल प्लेस कह रहे हैं हमारा रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर बोले मेरे साथ कॉस्ट ऑफ सेल ओवर एवरेज इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ सेल हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं सर हमें क्या निकालना पड़ेगा एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 जरा आ जाइएगा एवरेज यहां निकाल लेते हैं आसानी हो जाएगी एवरेज इन्वेंट्री निकाल लीजिएगा 12800 plus 14650 over 2 13 वेरीफाई कीजिए एवरेज इन्वेंट्री सो हम ये वैल्यूज डालते हैं 13750 हमने निकाल ली 13725 और कॉस्ट ऑफ सेल हमने निकाली थी 70400 इंशाल्लाह ताला फॉर्मूलाज कैलकुलेट करना आपके लिए इशू नहीं होना चाहिए लेकिन उसके लिए बातें आपको याद होनी चाहिए कि कौन कौन सी चीजें किस तरह हम निकाल रहे हैं 5.1 2 के बाद देख लीजिएगा क्या है उसे राउंड ऑफ कर लीजिएगा current ratio current asset upon current liabilities current asset upon current assets सर 2 करंट एसेट है मेरे पास और 2 ही करंट लायबिलिटीज हैं 146250 14650 प्लस 12700 और करंट लायबिलिटीज पे आएंगे हम लोग 5375 प्लस 7125 करंट एसेट प्लस करें 2.18 या 19:1 रेशियो हमेशा 1:1 में निकालते हैं करंट रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो 2 रेशियो है हमारे पास जो रेशियोज में निकलते हैं 1:1 करके आज ऐसा लिक्विड भी आ गया करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री अपॉन करंट लायबिलिटीज सर ऊपर से इसका मतलब इन्वेंट्री को हटा दें सिर्फ रिसीवेबल आ जाएगा नीचे वाली चीजें सेम रहेंगी जो है करंट एसेट में जो इन्वेंट्री होगी वही माइनस करेंगे ऑफ कोर्स क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल लीजिएगा आंसर आपके पास क्या आ रहा है वन 1.02:1 प्लीज वेरीफाई कर लीजिएगा 11 मार्क्स के ये सारे इसने हमसे रेशियोज निकाले हैं 5 रेशियोज फॉर 11 मार्क्स सो नेक्स्ट हमारे पास रिक्वायरमेंट देखते हैं वन इक्वा सप्लायर हैज ऑफर्ड आ जाए जल्दी थ्योरी आ गई हमारे पास 5 मार्क्स की one of the supplier has offered to sell her large quantity of inventory to reduce price agar supplier has offered to sell her a large quantity of inventory at a reduced price agar tum mujhse zyada maal kharid lo to main tumhe price kam kar दूंगा supplier वो होता है जिससे हम खरीदते हैं तो supplier कह रहा है अगर आप ज्यादा माल खरीदोगे तो मैं आपको प्राइस को रिड्यूस कर दूंगा Aqua is considering accepting her offer. Wow. Increase her expenditure on advertisement in order to sell more inventory. जी ये सारी प्लानिंग है हमारी एक्सेप्ट भी करना चाह रहे हैं
और फिर हम खर्चा भी करेंगे फॉर एडवर्टाइजमेंट. Advise Aqua whether she should purchase a additional inventory. Justify your answer by providing advantages and disadvantages. Advantages and disadvantages. More goods to sell will help to increase profit. ज्यादा माल बेचूंगा, ज्यादा माल बेचने की अपॉर्चुनिटी होगी तो मैं ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता हूं. एडवांटेज. शॉर्टेज ऑफ इन्वेंट्री, अवॉइड द शॉर्टेज ऑफ इन्वेंट्री. अक्सर हो जाती है, तो अगर आपके पास ज्यादा क्वांटिटी अवेलेबल होगी तो आप ज्यादा खरीद सकते हैं. बाय एट लोअर प्राइस, रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट मार्जिन एंड इंक्रीज प्रॉफिट मार्जिन. ये तीनों डिफरेंट पॉइंट हैं, गौर से देख लीजिएगा. अब उसने एग्जामिनर ने हमसे दो ही मांगे. नाउ डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? हाई स्टोरेज कॉस्ट, ज्यादा माल खरीद रहे हो. बिल्कुल. हाई एडवर्टीजमेंट रिक्वायर्ड, risk of not sold or obsolescence. Is it or not? ये ही है, she है. She could buy high quantity at lower price when it is estimated that she can sell it after advertisement. राइट हो गया. ऐसा ना हो कि हालात बुरे हो, कोई खरीद रहा नहीं हो और फिर आप उसे फिर भी आप खरीद लें. आप नहीं लिखे ना यार. बड़ी होती है. देखो, explain meaning and importance principle of consistency. Consistency in preparing financial statement. Business has to apply. Business has to apply methods, same methods consistently. Same methods and policies consistently to make financial statement realistic and fair. हर साल सेम मेथड क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि आप फेयर काम कर रहे हो, आप बार बार जंबल नहीं कर रहे, बार बार आप मेथड चेंज करके, पॉलिसी चेंज करके कंफ्यूज नहीं करना चाह रहे पब्लिक को. क्योंकि कंपनीज को ज्यादातर अपने रिकॉर्ड शो करने पड़ते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, तो वो कंपेयर करेगी आपकी करंट परफॉर्मेंस को लास्ट परफॉर्मेंस से. तो ऐसा नहीं जानबूझ के आपने पॉलिसी चेंज की है प्रॉफिट को छुपाने के लिए, प्रॉफिट अंडर एस्टिमेट करने के लिए या विंडो ड्रेसिंग के लिए. तो जो बार बार जंबल करते हैं अपनी चीजों को, इसका मतलब वो अपनी कुछ चीजें हाइड करना चाह रहे हैं. आगे चलते हैं. स्टेट टू नाइन नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स विच मे अफेक्ट इक्वास ट्रेडिंग रिजल्ट्स. नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं जो ट्रेडिंग को अफेक्ट कर रहे हैं? नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स, रेपुटेशन, पॉलिटिकल कंडीशंस,
ये तो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है ना, पॉलिटिकल कंडीशन जैसे हमारे यहाँ भी चल रहे हैं, मुल्क की हालात खराब, गवर्नमेंट अगर चेंज हो रही होती है बार बार तो फिर मार्केट में पैसा नहीं आता, बिजनेस अपना हाथ रोक लेता है। नॉन फाइनेंशियल फैक्टर है, जहाँ इकोनॉमी बूम चल रही हो, हर चीज पॉजिटिवली मूव कर रही हो, हमारे तमाम इदारे आपस में कोऑर्डिनेट से चल रहे हो, तो वहां लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जॉब ज्यादा बढ़ती हैं, सेल ज्यादा होती हैं। सो हियर वी गो, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। दिस पेपर this paper is May June 2022. This is May June 2022 going on with a variant of 21. So we have a club, we have a non-profit organization. हम ढूंढ रहे थे सर, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी ना आए और क्लब अकाउंट्स भी ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। याद रखिएगा, एटलीस्ट दोनों में से कोई ना कोई टॉपिक जरूर आएगा, या तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये बातें इन्हीं दौरान डिस्क्लोज की जाती हैं, पहले नहीं बताई जाती। आगे चलते हैं। हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है सर। आगे चलें, हमारे पास टोटल रिसीट्स और टोटल पेमेंट्स दी हुई हैं बैंक अकाउंट की। दे आस्क अस फॉर सब्सक्रिप्शन अकाउंट। आ जाए मेरे साथ सर, मुझे ज्यादा तो आपको पता है आता नहीं है, फॉर्मेट रटे हुए मैंने तो बस। एरियर्स ब्रॉट डाउन, एरियर्स कैरिड डाउन, एडवांस एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव, इररिकवरेबल डेट। अच्छा, ये देख लूं क्या इसने पास वास करके दिया है, नहीं दिया हुआ सर। बड़ी साइड को प्लस करो, छोटी साइड को माइनस करो, बीच में से इनकम एंड एक्सपेंडिचर निकाल लो। राइट हो गया। तो अब आइए मेरे साथ, वैल्यूज देखकर हम ट्रांजैक्शंस को कॉपी करते हैं, डालना शुरू करते हैं। सो सब्सक्रिप्शन एरियर्स 1820 18202115, एडवांस 22601745। Subscription received all by check 13900 13900। चले हम भी इसकी इज्जत कर लेते हैं थोड़ी सी। भाई कैसे आई है ये पैसे? बाय बैंक। No further transaction, no any other transaction relevant to subscription? No sir. So that's all. बड़ी साइट को प्लस करो, छोटी साइट को माइनस करो। बड़ी साइट क्रेडिट वाली है, बड़ी साइट को पहले प्लस करो, क्या आ रहा है आंसर? 18275 and income statement 14710। नाउ डेट का खास ख्याल रखिएगा, 2021 वॉट से देखिएगा, 1 Jan 2021 1 Jan, और बाकी सब कुछ 31 दिसंबर, बाकी सब कुछ 31 दिसंबर। इस तरह डेट डालनी है। डेट डालने का एक नंबर होगा, जो भी अकाउंट बनाऊंगा उसे कैरी डाउन करके ब्रॉड डाउन में लाजमी पहुंचाऊंगा। इस सवाल में भी एग्जामिनर ने कहा वह है रिक्वायरमेंट में, कैरी डाउन ब्रॉड डाउन करके छोड़ना है सवाल को। लुक हियर, ब्रिंग डाउन द बैलेंस ऑन 1 January। Do not lose any mark beta,
अल्लाह ताला ने आपको जहन दिया है, आप पढ़ रहे हैं, रेगुलर लेक्चर्स ले रहे हैं सर के, तो आप एक भी मार्क कोशिश करो लूज ना होने दो अपनी तरफ से, इंशाल्लाह. पॉइंट नंबर 2, एक्सप्लेन वेदर द ट्रेजरर शुड बी सेटिस्फाइड विद द अमाउंट ऑफ द कैश रिसीव्ड फ्रॉम द मेंबर्स ड्यूरिंग द ईयर. Some amount of $2115 is due to be paid. That is the only concern. There may be a chance of irrecoverable debts. Irrecoverable debt. That is a concern. The club should try the club should try to recover the amount within a year, within the period. यानी जिस पीरियड का है उस पीरियड में ज्यादा से ज्यादा अमाउंट हमारी रिकवर हो जाया करें, वरना चांसेस क्या होते हैं इसके, बैड डेट होने के चांसेस होते हैं. यू कैन राइट फ्रॉम योर ओन वर्ड्स, बट मेन बात याद होनी चाहिए, अगर मेरे पैसे मुझे नहीं मिल रहे, कुछ ड्यूज हैं, तो वो बैड डेट के चांस हैं. चाहे नॉर्मल ट्रेडिंग बिजनेस हो, चाहे वो क्लब है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग है, कोई भी बिजनेस है, अगर उसके रिसीवेबल खड़े रहेंगे ज्यादा अमाउंट के, तो उसके लिए कंसर्न है. नेक्स्ट, they ask for refreshment account, profit from refreshment 7 marks, profit from refreshment 7 marks. So profit from refreshment के लिए हम इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं. हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है रिफ्रेशमेंट का, जरा देखिएगा. ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री. यस सर, वी नीड टू मेक ट्रेड पेबल एज वेल. सेल्स ऑफ रिफ्रेशमेंट and payments for the purchases of refreshment. Right हो गया? No detail of any expense. So we are supposed to make trade payable first to calculate purchases, balance brought down, balance carried down, amount paid. इसकी मदद से हम क्या निकालते हैं? Purchases. ये इनकम टैक्स रिकॉर्ड में भी हम पढ़ चुके हैं, पढ़ते हैं, कैलकुलेट करते हैं परचेज. जरा मेरा साथ दीजिएगा. ये रहा ट्रेड पेबल 1940 और क्लोजिंग बैलेंस है इसका 1580. अमाउंट पेड 17650. बड़ी साइड को प्लस करो, छोटी साइड को माइनस करो, परचेजेस फाइंड आउट करो. 17290. Start from sales, कॉस्ट ऑफ सेल्स. एग्जाम में कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेगा. ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेज, देयर इज नो एक्सपेंस. क्लोजिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल. अब जो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वही हमारा प्रॉफिट फ्रॉम रिफ्रेशमेंट होगा. यही हमारा प्रॉफिट फ्रॉम रिफ्रेशमेंट होगा. 1040 1070 1130 1130. Opening and closing inventory. Purchases 17290 17. And sales mistake
Calculate the purchases again. Calculate the purchases again. Calculate the purchase again. We have the payment 10435. 10435. Calculate the purchase again. Payment for suppliers is 10435. 10435. 1007 5 10075. प्लीज वेरीफाई कर लीजिएगा परचेज की वैल्यू 100 सेल्स 17650 17 कॉस्ट ऑफ सेल बता दीजिएगा कॉस्ट ऑफ सेल 10015 माइनस कीजिएगा 76 there is no expense of refreshment there is no expense of refreshment next requirement statement of financial position extract you are supposed to make only current asset section current asset section में क्या आएगा sir number 1 inventory next subscription in arrears subscription in arrears there was no prepaid yes there is a chance of a bank balance or a cash balance let me check it first of all clothing inventory 1130 clothing inventory 1130 subscription in arrears 2115 2115 look here current assets कौन कौन से हैं मैं दोबारा मार्क कर लेता हूं करंट एसेट्स नंबर 1 सब्सक्रिप्शन एंडिंग में बनती है एसएफपी तो एसएफपी में ये वैल्यूज आती हैं सब्सक्रिप्शन एरियाज 2115 इन्वेंटरी 1130 रेंट पेड इन एडवांस 500 और बैंक बैलेंस 7743 77 and there is a prepaid as well 500 other receivable other kindly total कर लीजिएगा 11480 so alhamdulillah we have finished up our paper alhamdulillah